मुबारक हो, पम्स आ रहा है. اچھا گائز تو ویسے پولیٹیکلی اسپیکنگ آج میں کافی زیادہ اسٹرگل کیا تھا ٹو فائنڈ آؤٹ واٹ ایگزیکٹلی از گوئنگ آن, بٹ ون تھنگ وچ از گوئنگ آن اے بٹ ٹو مچ رائٹ ناؤ از کہ جیسے ہی یہ کیا نام لیتے ہیں اسد عمر یا کوئی اور نام آتے جیسے اسد کیسر ہے اور یہ سارے جو ہے نا, یہ سارے ایک دم سے کہنا شروع کر دیتے جی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے جہانگیر ترین سے, جی ہمارا اس سے کوئی رابطہ نہیں ہے, اس سے بھی ہمارا کوئی رابطہ نہیں ہے. فواد چودھری جو ہیں وہ رابطے میں ہیں. اینڈ لائک چلے اسد عمر سے تو کسی نے سوال پوچھا تھا نا کہ آپ کا کوئی رابطہ ہے کہ نہیں, سارے ایک ٹائم پہ چیخنا شروع کر دیتے کہ ہمارا رابطہ نہیں ہے, ہمارا رابطہ نہیں ہے. مجھے کیوں لگتا ہے کہ رابطہ ہے, پتہ نہیں, وہ تو میں نہیں جانتا ہے یا نہیں ہے, لیکن جو اس میں میرے خیال میں مزیدار بات ہے نا وہ یہ ہے پبلکلی اسد عمر صاحب کا کہنا کہ فواد سے بات ہوئی ہے. جی فواد سے. اچھا, اب یہ کیوں انٹرسٹنگ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ تھوڑے دن پہلے تک سب یہ کہتے کہ ہمارا فواد سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فواد صاحب کیونکہ پہلے ہی دن وہ گاڑی سے بھاگنے والا ایپیسوڈ ہو گیا تو سارے جو ہے نا وہ کیونکہ جو عوام تھے پی ٹی آئی سپورٹرز وہ کیونکہ ان کو پسند نہیں کر رہے تھے اور انہوں نے ساتھ ہی پریس کانفرنسز کر دیں, وہ بھی ان کو پسند نہیں آئی. ایسے لگا جیسے وہ عمران کو نکال رہے ہیں پارٹی سے. although he did end up meeting شاہ محمود قریشی in between, وہ گئے تھے جیل میں ان سے ملنے کے لیے, لیکن that didn't make a lot of difference I guess. تو سارے یہ یہاں تک کہ شاہ محمود قریشی کے بیٹے کا بیان آ گیا کہ نہیں فواد سے کوئی تعلق نہیں. اچھا, لیکن اب وہ مجھے ایگزیکٹلی ایپیسوڈ نمبر یاد نہیں, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ہم نے ٹیرس میں بیٹھ کے کیا تھا, جس سے میں نے کہا تھا کہ آپ دیکھیں گے کہ 3 سال کے اندر فواد چودھری, شیریں مزاری نام لے کے گیا تھا, یہ سارے پھر کسی پارٹی سے منسٹر ہوں گے جو بھی اس وقت پارٹی ہوگی. اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ اب یہ بھی جو ہو رہا ہے کہ وہ خود کہہ رہے ہیں اسد عمر کہ جی فواد سے ہے رابطہ, اس کا مطلب اگین نو انسائڈ انفارمیشن, لیکن ان کو کسی نے کہا ہوگا نا کہ یار فواد از ایکسیپٹیبل نہ ہو, ٹھیک ہے, تو فواد کو آپ لکھ دیجیے. وجہ کیا ہے, ہوتا کیا ہے میرا ٹیوا, اب یہ لوگ جو ہے نا ان پہ انویسٹمنٹ ہوئی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کی, یہ ایسٹس ہیں, ان کو کیوں ضائع کریں؟ مطلب بات یہ ہے کہ آج کوئی آپ کو کہے کہ جی مطلب ہمارے لیے کچھ کریں تو تم آگے سے کہو گی اچھا تو پھر آپ میرے لیے بدلے میں فلانا چیز کریں. اچھا, یہاں تم نہیں بھی کہو گی, وہ ظاہر ہے ایک طرف سے ہیلپ ہو رہی ہے, تمہارا وہ پورٹ فولیو بن رہا ہے, پروفائل بن رہا ہے, فائنلی تم ایک دن بن گئی ہو کچھ, ٹھیک ہے. اب وہ تم بیٹھی بھی ہو کسی بڑے عہدے پہ, منسٹر لگ گئی بھی ہو, تمہیں آیا فون کہ جی فلانا کر دیں, تو تم پھر کہو گی کہ یار مطلب اچھا تو پھر آپ میرے لیے یہ کر دیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پہ انویسٹمنٹ ہو چکی ہوئی ہے, نمبر ایک چیز پہلے. دوسرا یہ کہ یہ جو خاص طور پہ زندگی میں دوراہا آیا ہے, جس میں سے آج جس کو بچا لیں گے وہ ایسے زندگی میں نیچے لیٹ جائے گا اور ساری زندگی اتنا احسان مند رہے گا کہ جو بھی فون کر کے کہا جائے گا انہیں سوال جواب بھی نہیں کرنا, انہیں کہا اوکے باس. تو اب اس طرح کا ایسٹ جو ہے وہ کوئی کیوں لوز کرے گا؟ لیکن افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے سارے ایسٹس ہیں, نہیں تو اسی لیے جو ہے وہ ہمارا اندازہ جو ہے اگین ہمیں نہیں پتا کیا ہوگا, لیکن اندازہ یہی ہے, تجزیہ یہی کہتا ہے کہ مائنس صرف عمران خان نے ہونا ہے اس میں سے. اور بیسیکلی تو ویسے یہ جو کیس ہے نا جس کی وجہ سے یہ سارا شروع ہوا معاملہ, یہ 190 ملین پاؤنڈز والا, یہ اس میں میرا خیال ہے کہ یہ -1 نہیں -2 ہوگا. ایک تو اس میں عمران خان مائنس ہوں گے, دوسرا اس میں میاں نواز شریف مائنس ہوں گے. لیکن اس کے اوپر مطلب یہ پہلے ٹھیک ہو لینے دیں بات, اگر یہ ٹھیک ہوگی تو پھر اس کے پیچھے ریشنل کیا تھا وہ میں ایکسپلین کروں گا. ٹھیک ہے, خیر. لیکن میاں صاحب کا نام دوبارہ سے آیا ہوا ہے اور وہ آپ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ دی واری ہے. تو everyone prepare yourself before you get into the whining zone کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے, یہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ نے بہت انجوائے کیا ہے, لیکن آپ سارے کہہ رہے ہیں کہ اس طرف چل رہا ہے. یہ نہیں, نون لیگ کا نہیں, ایکچولی نون لیگ کی ہی بات ہوئی تھی. there was a whole ass نون لیگ کو کچھ نہیں ہوگا. سو نون لیگ کا تو بھلا اسی میں ہے کہ میاں صاحب مائنس ہو جائے. اس وقت تو ڈار بھی کسی طرح مائنس ہو جاتا تھا, ڈار کی بھی پاور میاں صاحب ہے نا.
सो मसला ये है कि अभी मियाँ साहब ने छोटे भाई को फिर बस के नीचे दी है हाँ, कि 2017 का कितना अच्छा था। शिबाज तो कितने फारिग हो, मतलब वो ना, मतलब पैसिव एग्रेसिव अपने भाई को किसी वक्त भी कॉन्फिडेंस नहीं देना चाह रहे होते कि तू कुछ करना पे है। ये और बात है, वो कुछ नहीं कर रहे बट स्टिल नहीं, वो कैसे करें, वो तो करना चाहते हैं, ये डार उन्होंने तो नहीं लगाया। हाँ, नहीं। मसला ये है कि आप जिस तरह अभी हमने ये भी कहा कि इस केस में भी जो इमरान खान के दौरे हुकूमत का केस है उसमें भी अभी आप देखेंगे मियाँ साहब बीच में आ जाएंगे। सो ये एक पाकिस्तान की 1951 से आप कोई भी इवेंट उठाएं, बीच में मियाँ साहब जरूर आएंगे। 1951 में वो पैदा हुए थे, वो हो गए थे ना, हाँ, दैट हैपेंड। उसके बाद कोई इवेंट नहीं है। आई थिंक चेन ऑफ रिएक्शन वहीं से स्टार्ट हुई थी कि मियाँ साहब की पैदाइश हो गई थी एंड सिंस देन जो है मसले पड़े हुए। खैर एनीवे, अच्छा इस सारे के अंदर ना चले, आई मीन आई डोंट नो इफ मैं गलत भी हो सकती हूँ, लेकिन मुझे हमेशा ये लगता था कि परवेज़ इलाही की कोई इतनी कोई फैन बेस नहीं पीटीआई के अंदर प्रॉपर पन से की थी, डिस्पाइट हिम हैविंग यू नो द सीएम सीट एंड एवरीथिंग। लेकिन जब उनको उस दिन उन्होंने अदालत में पकड़ा और उसके बाद उन्होंने कहा मैं ये कह रहा हूँ पीटीआई वाले आप डट के खड़े रहे, ठीक है ना, चट्टान बन जाए ये वो। ही रियली बिलीव्स कि देयर इज अ फैन फॉलोइंग, एक्चुअली चट्टान बन के रहेगी। देखिए इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये कि चौधरी बरादरान जो हैं ये इनकी लॉयल्टी ठीक है। मसलन इन जो नवाज शरीफ से जो इनकी पार्टिंग हुई थी वो तो मियाँ साहब ने वादा पूरा नहीं ना किया था, और वो कोई इन्होंने पता नहीं, मतलब आई डोंट नो इन्होंने बाकायदा खंजर घोंपा था कमर में कि नहीं, बस इन्होंने तो कह के अलहदा हुए थे कि जी आपने वादा पूरा नहीं किया, तो मतलब टाइप सीन। अगर वो वादा पूरा हो जाता तो शायद, मतलब फिर वही बात है, अब ये तो वही है ना कि ना होता ये तो क्या होता, तो लेकिन ये ना छोड़ते शायद मियाँ साहब को। तो उसी तरह ये अब अगर ये उनके साथ है, लेकिन बहरहाल मेरा यही ख्याल है कि परवेज़ इलाही साहब टेव है कि परवेज़ इलाही साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब जो है ना वो, उनको शायद ये लगता है और लोगों की तरह शायद और भी इसमें लोग हैं कि चेयरमैनशिप इनके पास आ सकती है। वो वेल लेट्स सी, क्योंकि मैं ये चेयरमैनशिप वाला एक पॉइंट डिस्कस हो रहा था, ठीक है ना, और वो मैं बहुत खामोशी से उसको ऑब्जर्व कर रही थी, और उसके अंदर सारे ना पीटीआई के ही बेसिकली बहुत हार्ड कोर वाले लोग उस बात कर रहे थे एंड दे वर लाइक के वी विल नेवर एक्सेप्टेड हिम एज द चेयरमैन ऑफ पीटीआई। मतलब वो बहुत ही लॉयलिस्ट वो वाले नहीं है कि इधर से उधर हो जाए दुनिया, जो मर्जी हो जाए, नॉट हिम नॉट एसएमक्यू। अरे आपके चाहने से क्या होता है एक्सेप्ट, हाँ सो मसला फिर वही है ना, अगर ये बन जाते हैं, नहीं तो चाहने से ये होता है कि अगर ये बन जाते हैं ठीक है, पीटीआई के लोगों को ये नहीं पसंद, लेकिन दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी और नून लीग है, बताएं फिर किसको देना उनको। सो वही मसला है ना कि आपके ये पीटीआई जो है ये अगर इमरान खान माइनस भी हो जाते हैं तो भी ये एक फोर्स रहेगी, क्योंकि ये जो सारे लोग हैं जो पीटीआई लवर्स हैं, वोट फॉर नून लीग और पीपल्स पार्टी, ठीक है, दे माइट एक्चुअली गो फॉर, देयर वर पीपल हु सेड कि वी माइट एक्चुअली वोट फॉर जेआई और जेयूआईएफ एट सम पॉइंट, ठीक है। उन्हें जेआई पे बहुत ज्यादा लोगों ने बात की कि हम उनको कर देंगे बिकॉज वी वांट टू यूज आवर वोटिंग राइट, लेकिन नून लीग और उनकी तरफ नहीं है आने वाले, ये तो पक्की बात है। अच्छा यार, उसी में जो था कि अब देखिए, मतलब व्हेन इट कम्स टू कि जी इमरान खान माइनस फार्मूला, आई डोंट नो कि किस एक्सटेंट तक इन्होंने जाना है, लेकिन वही अंदर से मीटिंग हुई और आपको पता ही है किसकी मीटिंग होती है, जिसमें मीडिया को ये ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जी इमरान खान की ना तो तस्वीर और ना ही नाम जो है वो लिया जाएगा खबरों में या किसी भी कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो नाम आप जितना मर्जी आगे पीछे करें, इमरान इमरान है, ये पार्टी उसी से एसोसिएट करते हैं। आई डोंट थिंक सो सेंसरिंग हिज नेम इज गोइंग टू मेक एनी सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट। जो उनके वोटर्स हैं वो रहेंगे, थोड़े बहुत हल्के फुल्के डिवाइड हो जाएंगे इधर उधर, वो भी नून लीग और पीपल्स पार्टी में नहीं। असल में डिवाइड, वोटर तो डिवाइड नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। होता ये है कि जो जब हर तरफ से बम्बार्डमेंट हो रही होती है ना, अब जिस तरह इमरान खान साहब की हो रही थी, ठीक है, तो उससे वोटर को परसेप्शन ये मिलता है कि मेरा लीडर बड़ा तगड़ा है, ठीक है, सो वो खुल के निकलता है वोट डालने। उसको ये होता है कि इसके पीछे पावरें हैं, ठीक है, इंटरनेशनल लॉबी भी इसको सपोर्ट कर रही है, अपनी लोकल इस्टेब्लिशमेंट भी इसके पीछे खड़ी है, फलाना। अच्छा, वो क्योंकि लोग जो हैं वो सियाने बहुत है ना, मतलब हमारे जो हैं वो
माड़े को वोट नहीं डालते, वो कहते हैं पावरों में कौन है उसको वोट डालना है। सो होता ये है कि ये जो लोग हैं जो इमरान खान लवर्स हैं, इनके पास वही बात है, इमरान ऑप्शन नहीं रहेगी, JUI को डाल देंगे, जमात इस्लामी को डाल देंगे। अच्छा, जमात इस्लामी को भी नहीं डालेंगे, ये शायद घर बैठे रह जाएंगे। लेकिन जो परसेप्शन जब होगा ना कि यार हमारा लीडर तगड़ा नहीं है, ये घर से नहीं निकलेंगे। अमूमन ऐसे होता है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये यूं ही करेंगे अमूमन, और ये से मुराद है हम अवाम ऐसे ही करते हैं। अवाम में बेसिकली नून लीग के अंदर भी देखा जाए तो मियाँ साहब बाहर बैठे हुए तो कोई भी उससे गरज बरस के नहीं आता कि हाँ जी हम ये कर देंगे तो वो कर देंगे। मेरे अपने हल्के के अंदर, हल्के नहीं मतलब जिन लोगों की जरूरत बैठती हूँ ना, तो वो अक्सर ये कहते हैं ओ ते आप पे बाहर जाके वगैरह नहीं पे आते ऐसी की वोट पाइए, ये वो फलाना नहीं। सो मेरा अब ये ख्याल है कि इस वक्त नून लीग, अब अगर इलेक्शन हो तो नून लीग को उनकी उम्मीद से ज़्यादा वोट पड़ेगा। उसकी वजह ये कि मियाँ साहब के अंदर बाहर होने से फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क ये पड़ता है कि पहले परसेप्शन ये था कि नून लीग को इस्टेब्लिशमेंट नून लीग के ख़िलाफ़ है और उनको रगड़ा दे रही है, या कम से कम वन ग्रुप ऑफ इस्टेब्लिशमेंट जो है इनके साथ नहीं है। अब ये है कि जी इस्टेब्लिशमेंट इनके साथ है। सो अब परसेप्शन है कि ये तगड़े हैं, तो तगड़े को वोट डालना है। वैसे कहाँ से आपको तगड़े लग रहे हैं? बस मुझे ये बताएं कि शहबाज शरीफ का कोई हाल है, देखा आपने उनके? मतलब आई अंडरस्टैंड वेयर यू कमिंग फ्रॉम, हाँ नहीं, आई अंडरस्टैंड वेयर यू आर कमिंग फ्रॉम, लेकिन इट नेवर गिव्स दिस काइंड ऑफ मतलब मैं अगर देखती हूँ, मैं आपको पता है एक्स वोटर रह चुकी हूँ, ठीक है, एक्स सपोर्टर भी रह चुकी हूँ, तो ये मैं ऑन रिकॉर्ड कह रही हूँ, प्लीज़ मेरी जान छोड़ दें, ठीक है। लेकिन इट डजंट गिव यू दैट, जो आई थिंक शायद मियाँ साहब होते तो शायद मुझे थोड़ा डिफरेंट लगता है, लेकिन शहबाज शरीफ के होते हुए मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि इसके पीछे किसी किस्म की कोई बैकिंग है या कुछ इस तरह से, पता नहीं, आई डोंट गेट दिस परसेप्शन एट ऑल। वो इतना माठा बंदा है, पता नहीं क्यों। खैर आई अंडरस्टैंड कि हाँ जी पीछे पावर्स हैं तो हैं, पीपल हैव गॉटन द आइडिया कि एस्टेब्लिशमेंट साथ है तो बस ठीक है। अच्छा खैर कहाँ जा रही थी मैं इससे, हाँ अच्छा, दिस इज़ पर्टिकुलरली हम लोगों ने ना पिछले से पिछला एपिसोड था आई थिंक जिसमें हमने ये बात की थी कि डिजिटल पाकिस्तान में डिजिटल होना है कि नहीं होना, नहीं उससे भी पिछला था। सो आई वांटेड टू टॉक अबाउट दिस कि ये ना एक स्टोरी इन्होंने, ये उमर मीर हैं, इन्होंने ट्विटर पे लिखा कि जी मिज़ान बैंक जो है उनकी ना एक फ्रीलांस की पेमेंट आई हुई थी, ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि जी मिज़ान बैंक इज़ नॉट लेटिंग हिम टेक दैट मनी बिकॉज मिज़ान बैंक इज़ नाउ, बिकॉज उन्होंने फ्रीलांसिंग से किया हुआ था, वो ये कह रहे हैं कि जी अपनी सॉफ्टवेयर की जो है ना जो डिग्री आपने ली हुई है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, IT की, वो हमें पहले प्रोवाइड करें। अब देखिए द होल कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीलांसिंग इज़ कि यू कैन यूज़ योर स्किल सेट जो आपका साइड पर है, जिसकी बेस पे यहाँ पे जॉब्स नहीं मिल रही होती, या ऐसा स्किल सेट जो आप लोग ऑन जॉब जो है वो सीखते हैं। जैसे कि मेरे साथ यही था, आई मेजर्ड इन फाइनेंस और उसके बाद मैं मार्केटिंग में शिफ्ट हो गई और उसके बाद मैं उस पर कॉन्टेंट राइटिंग में चली गई, ठीक है, उसके बाद मैंने सारा डिजिटल किया और मेरी उसके बाद डिग्री भी नहीं है, ठीक है, लेकिन वो सारा मेरा फ्रीलांस था और उधर से ही मैंने अर्न करना शुरू किया और अभी भी मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को सर्व करती हूँ, ठीक है। और अब अगर ये इस किस्म की लगाना शुरू कर देंगे कि ठीक है वो करती होगी तुमने, क्योंकि मैंने बहुत सारा स्किल इस तरह से किया था कि फेंक देते थे और कहते थे अब सीखो, अब करो कि ये किस तरह से करना है। नाउ इफ द बैंक्स कम इन विद दिस कंडीशन कि जी अब डिग्री लेकर आए, तो हमारे पास इन चीज़ों की डिग्री तो नहीं है अली, वी लर्न दिस स्किल्स जस्ट लाइक दैट। वो असल में मिज़ान बैंक जो है ना उनके बड़े वो सब, मिज़ान बैंक बहुत ज़्यादा इस वक्त प्रॉफिट बना रहा है और पिछले बहुत सारे सालों से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट बना रहा है पाकिस्तान में। और उनका प्रॉफिट बनाने का वो इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि आप बहुत सारी मार्केट्स में जब जाते हैं ना, तो आप जब वहाँ पे बिजनेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, मतलब आपने इचरे में दुकान खोली है, आपने कहीं पे दुकान खोली है, अब आपके राइट लेफ्ट दुकानदार हैं, आपने उनके साथ ट्रेड करनी है, तो वो सबसे पहले आपको करते हैं कि ऐसा करें कि आप वहाँ पे ना अकाउंट खुलवा लें। अच्छा, अब आप कहते हो कि यार मेरे 25 अकाउंट हैं, नहीं आप आसानी हो जाती है, अच्छा पता नहीं। अच्छा आप उधर जब जाते हो ना तो फिर वो ना अब मैं बहुत ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन आप समझ जाएं कि वो ना वो आपसे बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं और फिर वो उसमें ना बहुत अड़स डालते हैं अगर हर चीज़ जो है ना मेजॉरिटी के मुताबिक ना हो, तो वो जो है ना फिर वो होता ही है कि वहाँ पे आपका अकाउंट बन जाए ना, तो फिर मार्केट कहती है अच्छा ओके आ जाओ फिर आप तो। सो इस तरह के मसाइल से ये जो है ना और बैंक मतलब ये इस तरह के
मैं एक बैंक की मिसाल नहीं देना चाहता, और भी नहीं, इस तरह के और भी बैंक हैं। तो मतलब वही बात है, हमारे एक दोस्त को एक बैंक ने आके कहा था अपना अकाउंट ख़त्म कर लें या फिर अपना सोर्स ऑफ इनकम म्यूजिक के अलावा कुछ लिख दें। एग्जैक्टली, सो इस तरह की कीप चीज़ें आस्किंग यू होती फॉर हैं। दीज डिटेल्स। और मतलब मैं तो एक क्लाइंट के साथ काम करना चाह रही थी यूके में, वो अभी तक काम इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि कोई बैंक उसकी ट्रांजैक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, हमारा सेटअप नहीं हमें अलाउ करता, ये नहीं करता, वो नहीं करता। तो मुझे नहीं पता ये काम कैसे होगा, लेकिन मैं पर्सनली बहुत थ्रेटन फील कर रही हूँ इस टाइम पर। नहीं, लेकिन उसका तो ये है ना कि आपका जो बाहर वाला क्लाइंट है ना, उसको तो अब जाहिर है वो उसमें रेट में थोड़ा सा फर्क होगा, मतलब रेट में थोड़ा सा क्या फर्क होगा, इंटर बैंक से भी आपको 2-4 रुपए कम मिलेंगे, लेकिन अपना पेयोनीर पे या वाइज पे अकाउंट बना लें, वो आपको इंग्लैंड का अकाउंट नंबर भी दे देगा और यूएस का अकाउंट नंबर भी दे देगा। हाय हाय, लेकिन इस वक्त मुझे काफ़ी परेशानी पड़ी है बिकॉज ऑब्वियसली मेरी तो आधी ज़िंदगी फ्रीलांस पे चल रही है, एक नौकरी के साथ काम नहीं होता, ये तो आप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं। खैर, अच्छा जी, वर्ल्ड बैंक ने हमें एक अच्छी खुशखबरी दी है विच इज़ कमिंग आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई गेस। वो ये है कि उन्होंने ज़रा हल्की शर्तों के ऊपर पाकिस्तान को 442 मिलियन जो है डॉलर का जो है वो लोन देने लगे हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच, क्योंकि हम तो अपना पूरी तरह IMF को पता नहीं क्या उसके साथ करना चाह रहे हैं। किसी दिन ना आप बहुत डिटेल प्रोग्राम करें पूरे IMF के ऊपर, ये अभी करते जाएं। नहीं, ये आज जो है, जो अभी इकोनोवाइज 5 बजे पब्लिश हुआ है, वो आप देखें, और उसमें वो अली मलिक ने काफ़ी डिटेल में बताया कि जितना कहते थे ना इसहाक डार साहब के आई डोंट केयर इनको चाहिए पैसे He does care. IMF ही देगा, नहीं दे रहा चाइना, मतलब चाइना डिफॉल्ट से बचा लेगा लेकिन पैसे नहीं देता, और IMF जब तक नहीं देगा पैसे, इनको चाइना ने भी ऊपर देखिए, आपको डार नहीं बता रहे कि he cares, बट हम बता रहे हैं कि he does care, ठीक है ना, तो take our word for it कि he does। और इसमें बाकी ये है कि अच्छा, ये जो कहते हैं ना कि नरम एक साथ पे, तो ये मुझे बड़ा पसंद है, नरम एक साथ, हाँ, क्योंकि सख्त वाली हमसे तो नहीं पूरी कभी हुई। और जिससे मुझे 2 ख्याल और भी आए। एक तो मुबारक हो आप सबको, सोलर पे इन्होंने 16% जो सेल्स टैक्स लगाया था वो ख़त्म कर दिया। सो अब आपको फौरी तौर पे जो भी कल मतलब अभी पहले प्राइसेस थी वो 16% तो कम हो गई। सो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ ये है कि सारे बैंक्स एडवर्टाइज कर रहे हैं, अगेन कुछ तो कर रहे हैं, मैंने खुद गूगल पे देखे और तारीख देखी है, इसी महीने की तारीख है कि हमसे आप इंस्टॉलमेंट्स पे सोलर लगवा लें। हाँ, लेकिन जब उनके पास दोस्त जा रहे हैं तो वही वाली बात है कि वो ब्रांच में कहते हैं कि नहीं है, या शराइत इतनी सख्त है कि हेडक्वार्टर तक नहीं भेजना हो, मतलब फिर यही बकवास शुरू हो जाए। सो ये वाला भी मसला चल रहा है। सो नरम शराइत जो है ना, हम सिर्फ नरम शराइत पूरी कर सकते हैं। जिससे नरम से मुझे एक और चीज़ याद आई कि ये जो होता है ना, पान वालों को पता नहीं क्या शौक होता है कि उसके अंदर सुपारी डालने का, और उसके आप जितना बर्बाद हो जाता है पूरा पान, मर्जी कहो ना कि, और वैसे तो यार असूलन तो पान सुपारी वाला ही होता होगा, लेकिन हमारे दांत ही क्योंकि नहीं जवानी में भी नहीं खाया जाता था, तो उनको आप जो कहो ना कि सुपारी माइनस कर दो, तो वो आगे से कहते हैं कि नरम सुपारी डाल देते हैं। अच्छा, मुझे एक तो नरम सुपारी जो है ना, वो भी वो खास नरम नहीं होती, वो वैसे भी मेरे दांत में फंस जाती है बड़े आराम से। हाँ, दूसरा ये है कि बस अगर कोई कह रहे क्लाइंट इज ऑलवेज राइट टाइप, या व्हाई डू यू हैव टू फोर्स दैट? सिखाएं आप पान वालों को, उनको मतलब अगर कोई कह रहा है नहीं खाना, नरम सुपारी भी नहीं चाहिए तो पैसे वही दे रहा है ना, मतलब जो आपने पैसे मांगे थे आपको वही मिल रहे हैं, तो आप ना डालें उसके अंदर। खैर, क्या मतलब वर्ल्ड बैंक की नरम शराइत से पता नहीं पान कहाँ से आ गया। देखिए, कंटेंट देना है, कंटेंट देना चाहिए, रैंडम एज फक। खैर यार, मेरी बात सुनिए, मैं ना बाकी सारी, एक तो फ्रीलांसर खबर से तो मैं वैसे ही तबाह हुई हूँ इस टाइम पे कि मेरे अंदर पता नहीं क्यों मैं एंजाइटी का शिकार हूँ। बट ज़्यादा रोग मुझे उस बात पे लगा कि जी जजेस, अब अदलिया ने ये कहा है कि कोई भी जज के रिमार्क्स या उनके नाम जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं, अगर आप लेंगे टीवी पे या कहीं भी, तो वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आएगा। ठीक है, आप नहीं अब नाम ले सकते, और अगर टीवी चैनल्स इसके टिकर्स चला रहे हैं तो उनको भी जो है नोटिस जाएंगे तौहीन अदालत के। तो अली, आई एम गोना बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट दिस, जितने मेरे राइटिंग के प्रोजेक्ट्स मैंने अगर किए हैं ना, लिखे हैं, आर्टिकल्स लिखे बाहर के पब्लिकेशंस के लिए, पाकिस्तान की पब्लिकेशंस के लिए, देयर इज़ नॉट अ सिंगल आर्टिकल जिसमें मैंने अदलिया के जो खूबसूरत जुमले आते थे वो ना इस्तेमाल किए हों। उनके अराउंड ही मैं अपना कंटेंट पूरा तैयार किया करती थी, टू प्ले अराउंड विद सेट आए, तो मैं तो महरूम रह जाऊंगी।
یہ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ ہاں دیکھیں ٹیسٹفلی کریں, کیا کر سکیں گے. اور دوسرا ایک اور چیز, اس طرح کی چیزیں جو ہے نا, مطلب وہی بات ہے, شاید شروع میں ٹیسٹ کیس بنا کے کچھ لوگوں کو مطلب عبرت کا نشانہ بنا کے بنانے کی کوشش کی جائے, لیکن زیادہ دیر یہ معاملہ نا چل نہیں سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو پاور جو ہے نا, اس کی جب تک ایلوژن آف پاور جو ہے نا, وہ اصل چیز ہوتی ہے جب وہ پراپرلی مطلب جب وہ ایکسرسائز ہونا شروع ہو جائے نا, پھر وہ, اور مطلب اگر آپ کو وہ کرنا پڑ گیا نا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ وہ باتیں نہیں رہیں. ہاں تو اس کا مطلب ہے کہ لائک پھر لوگوں کے اوپر میرے خیال سے ان کا ڈر بھی ختم ہوتا جاتا ہے کہ یہ تو پھر این جی سے. ایگزیکٹلی, کیونکہ ہوتا پتہ ہے کہ جب آپ کسی کو عبرت کا نشانہ بنا دیتے ہو نا, تو واقعی وہ بندہ دوبارہ نہیں کرتا, باقی سارے کرتے. لیکن باقیوں کو ہوتا ہے کہ یار وہ بھی تو مطلب بچی گیا نا, مطلب سر ان کو نہیں پتا کہ وہ کس چیز میں سے گزرا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگلی وہ ایک دفعہ نا اسٹینڈرڈ سیٹ ہو جاتا ہے, پھر وہ کہتے ہیں نصیب ہی کریں گے. اس پہ نا مطلب اس کی آپ اس سے بھی ایگزامپل لے لیں کہ یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو سارا ہے نا, جی آپ کتنے لوگوں کو ڈرا سکتے ہو یا اندر کر سکتے ہو یا سزا دے سکتے ہو, ٹھیک ہے, کتنی زیادہ آبادی کو. اچھا آن دی ادر ہینڈ آپ ان کو فائدہ بہت زیادہ دے سکتے ہو. سمجھ رہے ہو کہ اچھا تم ایسا کرو کہ اس چیز کا کانٹریکٹ لے لو, تم ایسا کرو اس چیز پہ فلانی چیز کر لو, تم اس چیز پہ. اچھا یہ ہمیشہ سے جو یہ بھی ہوتا تھا نا کہ یار یہ پنجابی جو ہے نا, پنجابی نہیں نکلتا, پنجابی نہیں لڑتا, پنجابی ڈرپوک, پنجابی. اچھا پنجابی کا مسئلہ پتہ نہیں یہ تو ڈرپوکی شرپوکی کا ہے کہ نہیں ہے, بیسیکلی سیانے بہت ہے نا. جب ان کی روٹی مطلب ہماری, میں خود ہوں, سو جب روٹی لگی ہوئی ہے کیوں, تو پھر ہم ٹینشن نہیں لیتے. سو پرابلم یہ ہے کہ جب ہوتے ہیں نا سسٹم میں پیسے, تو پھر کوئی بھی چول نہیں مارتا ہے. جب نہیں ہوتے نا تو پھر لوگوں کے غصے پتہ نہیں کہاں کہاں نکل رہے ہوتے ہیں, ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ ہاں کچھ ہو ہی نہیں سکتا. سو مسئلہ یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کے دفتر میں جا کے دیکھو کہ کتنی فائلیں ٹرانسفر ہو رہی ہیں. اگر تو دن کی 25 فائل بھی ٹرانسفر نہیں نہ ہو رہی, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کیرٹ ختم ہے, اب بس سٹک ہے. سو یہ بڑا رولا ہے. سو اس ملک کی اگر اکانومی, وہی والی بات ہے, یہ بار بار ایگزامپل وہ جو چائنا ہے نا, کہ چائنا صرف ہو سکتا ہے اگر عوام کو بجلی بھی دے دی جائے کہ 700 روپے میں جتنے مرضی اے سی چلا دو, اور ساری چیزیں دے دی جائے, پھر کہو کہ اب بیٹے اب تمہاری زبان نہ کھولو, ٹھیک ہے, اب تم چپ کر جاؤ, I have given you everything. ٹھیک ہے, جیسے امیاں ہوتی ہیں نا تو کہتی ہیں دے دیا نا, چپ کر جاؤ, دے دیا میں نے. تو that's gonna be a mom zone. تو خیر anyway, خیر دس از اٹ. سوری 20 منٹس ہو گئے ہوئے ہیں, تو ہمیں اس کو کمپلائی کرنا ہے. نیکسٹ جو ایپیسوڈ ہے اس کے اندر مائٹ بھی میں آپ کو بہت اعلیٰ ریکمنڈیشن دوں, ڈو واچ دیٹ. اوکے جی, بائے بائے.